Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing new centers of power, and under this new center of power, we have started our discussion about Russia. Russia as a new center of power. As we have seen that these are the new countries we have been added through the revised syllabus. And we all know that Russia is the successor of USSR. We have discussed about it in the previous class that USSR, which was formed in the year 1922 and which emerged as a superpower after the end of the Second World War, and then we have seen that two superpowers were there on the in the world politics. They were USSR and US. There was Cold War between these two superpowers, and we have also seen that we have also discussed and we have studied all these things under chapter 1 and 2, how this USSR came to an end in the year 1991, and after the disintegration of USSR, Russia emerged as the strong successor of USSR. And at present we can say, yes, it took almost 10 years to revive Russia. It took almost 10 years to stabilize in Russia politically, economically, in all spheres of life started to be stable during these up to 1999. उसके बाद से ये स्टेबलाइज करना स्टार्ट करता है, एंड आज के डेट में हम रसिया को एक न्यू सेंटर ऑफ पावर कंसिडर करते हैं, और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमने कल डिस्कस किया था। अगर रसिया की इकोनॉमी को देखें तो दिस इज़ द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी, जिसमें कि हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनके वैल्यू को ऐड करते हैं। एंड अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो रसिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसके अलावा रसिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पावरफुल, दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री आफ्टर यूएस, है ना। तो रसिया की जो मिलिट्री है वो सेकेंड मोस्ट पावरफुल है यूएस के बाद। और ये जो मिलिट्री पे जो रसिया एक्सपेंड करती है, जो खर्च करती है अपनी मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए, अपनी मिलिट्री के एनहांसमेंट के लिए जो भी खर्च करती है, दैट इज़ 4th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वो 4th हाईएस्ट है। तो ये इसके स्ट्रेंथ को बताता है। दिस टेल्स इट्स स्ट्रेंथ कि हाउ पावरफुल इज इट। इट स्पेंड्स so much on military. It is 4th largest, 4th highest in the world. And if we see its nuclear weapon status, then we also find that it is a recognized nuclear weapon state. There is a much difference between these two status. One is recognized nuclear weapon state and the another is unrecognized nuclear weapon state. As we have seen in case of India, we are unrecognized nuclear weapon state. We have nuclear weapon, but we are not recognized by the world community because we have developed these nuclear weapons by not signing NPT, by not signing CTBT. बट यहाँ पर अगर रसिया को हम देखते हैं तो रसिया इज रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट बिकॉज इट इज़ द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, एंड यूएसएसआर वाज न्यूक्लियर वेपन स्टेट बिफोर 1967, before this NPT came into existence. So it is a recognized nuclear weapon state which enhances its status. Not only this, but we find that it has the world largest stockpile of nuclear weapons. न्यूक्लियर वेपन्स का जो स्टॉक है इसके पास वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा है। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं न्यूक्लियर वेपन के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रसिया की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा है रसिया के पास। इट हैज़ द लार्जेस्ट energy resources in the world,
and not only this but it is also one of the leading producers of oil and natural gas. ऑयल और नेचुरल गैसेस का ये एक लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, और वी नो दैट एट प्रेजेंट जो एनर्जी है that has become very much important because एनर्जी जितने भी हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उससे क्या हो रहा है कि जो नॉन रिन्यूएबल है वो डिप्लीट होती जा रही है, और एनर्जी की जो हम देख रहे हैं कि आगे फ्यूचर में बहुत बड़ी क्राइसिस आ सकती है। तो ऐसे में जिस कंट्री के पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो कंट्री एक अपने आप में ही वो पावरफुल बन जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन द कंट्री। और साथ ही साथ अगर ये ऑयल और नेचुरल गैस का भी लीडिंग प्रोड्यूसर है तो ये इसके स्टेटस को और भी ज़्यादा एनहांस करता है। ठीक है, तो ये एनर्जी रिसोर्सेज की बात हमने देख ली। अगर हम पॉइंट्स करें तो ये एक तो इकोनॉमी हो गया, दूसरी इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ हो गई, तीसरा इसका न्यूक्लियर वेपन स्टेट का होना हो गया, चौथी चीज़ जो हम देखेंगे वो इसके एनर्जी रिसोर्सेज। और इसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रसिया के एज अ न्यू सेंट्रल पावर, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। रसिया में ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है वो अच्छा है, दैट इज़ वेरी गुड। और जो UNDP जो HDI तैयार करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके बारे में यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है किसी कंट्री में, एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर दिस ह्यूमन डेवलपमेंट। द क्राइटेरिया फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ एजुकेशन एंड हेल्थ अदर देन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के साथ साथ एजुकेशन का लेवल और हेल्थ की कंडीशन भी देखी जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो रसिया का के लिए HDI में जो रसिया का पोजीशन है दैट इज़ 52। इट हैज़ 52nd रैंक इन द HDI बिकॉज यहाँ पर अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम को देखें तो बहुत ही गुड क्वालिटी का यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल है। एंड नॉट ओनली दिस, फ्री यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी एजुकेशन, नॉट ओनली अप टू द, जैसे हमारे यहाँ भी फ्री एजुकेशन है बट दैट इज़ ओनली अप टू द प्राइमरी लेवल, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक फ्री है। तो ऑब्वियसली इफ़ फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इफ़ universal healthcare system is prevailing in the country, then it will lead to good human development, and that is the reason Russia is on the 52nd rank. So हम लोगों का जो next point होगा that is about the human development. इसमें हम HDI में जो रैंक है रसिया की वो देखेंगे, दैट इज़ 52nd। और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस हाई रैंक? द रीज़न इज़ दैट यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम एंड universal healthcare system, and next is free university education. Okay, so these are the main points about about Russia as a new center of power. And one more point is there which is very much important, that Russia is a permanent member of United Nations Security Council. It is one of the members or one of the member in P5. P5 क्या हुआ? This is permanent 5। जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें एक रसिया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं US है, चाइना है,
ब्रिटेन, यूके है, फ्रांस है और रसिया है। जैसे पहले कौन था, पहले यूएसएसआर था, बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर नाउ रसिया हैज़ बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएसएसआर बिकॉज it has become the successor of the USSR. ठीक है, तो these are the points which we will include in Russia as a new center of power. तो ये चीज़ें हैं जो रसिया को एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाती है. ओके, एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट nation which is a new center of power according to our new revised syllabus, and this is Israel. Israel. First of all, you must understand the position of the location of Israel. Where is Israel located? Israel is located in the Middle East. अगर पूरे दुनिया के हिसाब से हम देखें तो ये मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड है, और अगर एशिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ये वेस्ट एशिया में है. ठीक है, बोथ आर सेम. इज़राइल जो है वो वेस्ट एशिया का एक कंट्री है, और ये जो कंट्री है इज़राइल वो जीव्स नेशन है. ये जीव्स की कंट्री है. ठीक है, और अगर हम इज़राइल की हिस्ट्री को देखें तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही है. जिसको आज हम इज़राइल कहते हैं, जिस जगह को, एक्चुअली दैट प्लेस वाज वन ऑफ द दैट प्लेस वाज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर वो टर्की का एम्पायर था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, और इसकी टेरिटरी जो थी एक्सपैंड करते करते काफ़ी दूर तक पहुंच गई थी. ये बहुत बड़ा एक एम्पायर था उस समय का, जिसका सेंटर टर्की में था, और जिसको आज हम इज़राइल करें दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ठीक है, फिर क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की या कहें ऑटोमन एम्पायर जो था वो एक तरफ था, दैट वाज एक्सिस पावर, है ना. ऑटोमन एम्पायर एक्सिस पावर था, और जो अलाइड पावर्स थे यूएस एंड यूके, ये रसिया, ये सारे अलाइड पावर्स थे. जैसे कि हम लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा था, उसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यूके, रसिया, फ्रांस एंड यूएस, जो कि बाद में आया था. शुरू में यूएस इन्वॉल्व नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना कि यूएस जो है वो अलूफनेस की पॉलिसी अपनाता था, तो यूएस वाज नॉट इन्वॉल्व फर्स्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बाद में वो उसमें इन्वॉल्व हुआ था. तो इनको हम अलाइड पावर्स कहते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं यूके है, फ्रांस है, रसिया है, और यूएस भी है. ठीक है, एक तरफ ये अलाइड पावर्स थे, और दूसरी तरफ जो कंट्रीज़ थे एक्सिस पावर में, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री ये ऑटोमन एम्पायर था, जिसका सेंटर टर्की में था. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नतीजा क्या होता है, व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? द कंसिक्वेंस वाज दैट द अलाइड पावर्स वर द वो जीत जाते हैं. अलाइड पावर्स वर द विक्टोरियस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जो एक्सिस पावर थे वो हार जाते हैं. तो जब ऑटोमन एम्पायर हार जाता है तो क्या होता है कि ऑटोमन एम्पायर के जो भी टेरिटरीज थे वो सब जो अलाइड पावर्स थे उनके कंट्रोल में आ जाता है, और जिसको हम अभी इज़राइल कह रहे हैं वो पोर्शन जो है वो ब्रिटेन उसको कंट्रोल करता है, वो ब्रिटेन के ओनरशिप में आ जाता है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और जब वो ब्रिटेन के ओनरशिप में आ जाता है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट्स होते हैं. एक्चुअली अगर हम देखें तो जिस जगह को हम इज़राइल कहते हैं दैट प्लेस ओरिजिनली बिलोंग टू अरब मुस्लिम्स. ठीक है,
वो जगह ओरिजिनली अरब मुस्लिम्स को बिलोंग करती है, लेकिन आफ्टर द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ दैट प्लेस, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, what happened that Jews from all over the world, we can say, they started to come in Israel and they started to settle down there. ठीक है, जब से ब्रिटिश ऑक्यूपेशन वहाँ पर होता है तब से एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, जहाँ पर भी ज्यूज थे वो सब यहाँ पर आकर के रहने लगते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि न सिर्फ वो रहने लगते, धीरे धीरे दे स्टार्टेड टू क्लेम दैट दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू द ज्यूज, एंड इन दिस वे a conflict arise between these Arab Muslims and Jews, क्योंकि अरब मुस्लिम्स का कहना था कि वो प्लेस जो है वो उनको ओरिजिनली बिलोंग करती है, तो ये उनकी है, लेकिन ज्यूज जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्ल्ड से आकर वहाँ पे बस जाते हैं वो उसको क्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद इनके बीच एक बहुत ही लंबी जिसको कहेंगे लड़ाई चलती है। जो अरब मुस्लिम्स का जो एरिया था उसको पैलेस्टाइन कहा गया, ठीक है, इट वॉज कॉल्ड पैलेस्टाइन। और अरब मुस्लिम्स जो थे दे वर फाइटिंग फॉर पैलेस्टाइन की, इस ये जो एरिया है दैट शुड बी नोन एज पैलेस्टाइन। और ज्यूज जो थे वो लड़ रहे थे इसलिए कि वो उनको वो जगह इजराइल के रूप में चाहिए थी। तो इनके बीच की लड़ाई चलती है, लेकिन ज्यूज के साथ अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज वर विथ ज्यूज, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि अरब वर्ल्ड में जो कि हमारा मिडल ईस्ट है उसमें सिर्फ एक ही जो नॉन मुस्लिम अगर कोई कंट्री इवॉल्व करता तो वो यही इजराइल होती। तो सपोर्ट जो था उसको वेस्टर्न कंट्री से मिला, और यही कारण था कि मई 1948 में हम देखते हैं कि इजराइल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन मई 1948। Israel came into existence, but Arab Muslims were not ready to accept it, and that is why we find that next year in 1949 में अरब इजराइल वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से जो पैलेस्टाइन के लिए जो लड़ाई चल रही थी, जिसको हम जिसके लिए जो लड़ने वाला जो मेन ऑर्गेनाइजेशन था दैट इज नोन एज PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिसके लीडर थे यासर अराफात। तो यासर अराफात वाज फाइटिंग फॉर पैलेस्टाइन, एंड दिस Jew nation Israel was created by United Nations in May 1948, and even after the creation of Israel the struggle was going on, and then we see कि इज़राइल के अंदर दो जो इज़राइल के आसपास जो उसका लोकेशन है, अगर उसको आप मैप में देखेंगे, मैप में ज़रूर ऑब्जर्व करना है इसको, तो इसमें दो जो रीजन है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, जिसको हिंदी में गाजा पट्टी कहते हैं। ये गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक, ये एरियाज जो थे ये पैलेस्टाइन के लिए दे दिया गया, ठीक है। दिस एरिया वॉज गिवन फॉर पैलेस्टाइन, और बाकी जो था वो इज़राइल रह गया। तो ये इज़राइल की हिस्ट्री है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस सरकमस्टांस में इज़राइल जो है वो एग्जिस्ट किया, एंड इट वॉज रियली नॉट ईजी। चारों तरफ आप कहा जा सकता है कि जो आपके लिए अनडिज़ायरेबल नेबर्स हैं उनके साथ आप घिरे हुए हैं, एंड आज हम उनको उस कंट्री को एक न्यू सेंटर ऑफ पावर में पढ़ रहे हैं, तो ये उसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इज़राइल में आखिर क्या चीज़ें हैं जिससे कि हम उसको एक न्यू सेंटर ऑफ पावर कहते हैं, on what basis we can say that Israel is a new center of power। तो सबसे पहले अगर हम इज़राइल की इकोनॉमी को देखें तो इज़राइल की जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि इकोनॉमी जो है मार्केट इकोनॉमी है, स्टेट हैज़ no control over the economic activities, everything is controlled by the private individuals and private companies, and Israel is
राइजिंग वेरी फास्ट, इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो इकोनॉमी को अगर हम देखें तो इज़राइल जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसके बाद अगर दूसरी चीज़ जो इज़राइल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है, फर्स्ट हमने इकोनॉमी को देखा, सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर इज़राइल के साइज़ को हम देखें तो ये बहुत ही छोटी कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है। हमारे कंट्री के जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं लाइक केरला, उतनी बड़ी साइज़ है इसकी। फिर भी आज ये हमारे सिलेबस में एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर जोड़ा गया है। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इज़न्ट इट। तो जो चीज़ें इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं वो है इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कहा जाए डेवलपमेंट है वो बहुत ही हाई लेवल का डेवलपमेंट है, और इसी का नतीजा है कि इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कैसे किस बेसिस पे हम कहेंगे कि ये इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कुछ हासिल किया है। इट हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो आज हम देखते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल, इंटेल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी जो ओवरसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ जो हैं, पहली जो इन कंपनीज ने अपनी फर्स्ट जो ओवरसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी ओपन किया वो इज़राइल में ओपन किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में कंट्री काफ़ी आगे है, बहुत आगे है। यही कारण है कि इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, इन्होंने जो अपना पहला R&D का फैसिलिटी ओपन किया वो इज़राइल में ओपन किया। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इज़राइल। ओके, अब अगर हम इज़राइल की जो कंपनीज हैं उनके बारे में अगर हम एक दूसरा इंफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे कि नैस्डैक क्या है? अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है ना। अब ये जो अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है नैस्डैक, अगर उसमें हम देखें जो लिस्टेड कंपनीज हैं, तो सबसे ज़्यादा जिस कंट्री की कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड है नैस्डैक में, जिस कंट्री की सबसे ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है वो यूएस है। देन सेकंड पोजीशन पे इज़राइल है। इज़राइल की जो कंपनीज हैं वो सबसे सेकंड लार्जेस्ट है इज़राइल की कंपनीज जिनका कि नाम नैस्डैक में है। नैस्डैक में लिस्टेड कंपनीज में ये सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये इसका अनदर अचीवमेंट हम इसको कहेंगे कि एक इतनी छोटी सी कंट्री यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में अपनी लिस्टेड कंपनीज जो है वो दूसरे नंबर पे है इसकी। तो दिस इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट जो कि हमें बताता है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज़्यादा है। इसके अलावा ये सारे जो है हमारे इकोनॉमी में ही आएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो इज़राइल को क्या कहा जाता है? स्टार्टअप नेशन, क्योंकि जितने स्टार्टअप्स के हिसाब से अगर देखे जाए तो सब फर्स्ट नंबर पे तो यूएस है और सेकंड पे इज़राइल है। स्टार्टअप कंपनीज जो की जाती है उनके जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इज़राइल इज़ एट द सेकंड पोजीशन, और दैट इज़ द रीज़न दैट इट इज़ कॉल्ड स्टार्टअप नेशन। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इज़राइल की डायमंड इंडस्ट्री को देखें तो डायमंड इंडस्ट्री यहाँ की बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। पूरे वर्ल्ड में जो डायमंड का एक्सपोर्ट होता है उसका 23% जो है वो कौन एक्सपोर्ट करता है? इज़राइल एक्सपोर्ट करता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट
यहाँ पर डायमंड मिलता नहीं है, डायमंड बिल्कुल भी इसराइल में नहीं मिलता है। स्टिल इट एक्सपोर्ट 23% ऑफ द होल 23% ऑफ द डायमंड, है ना। पूरी दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है डायमंड का, उसका 23% हिस्सा जो है वो इसराइल एक्सपोर्ट करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो कटिंग और पॉलिशिंग होती है ना डायमंड की, वो इंडस्ट्री यहाँ पर है। हीरा यहाँ है होता नहीं है, इट हैज़ नो रिजर्व ऑफ डायमंड, बट स्टिल इट इज़ लीडिंग इन डायमंड इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग। ठीक है, तो कटिंग और पॉलिशिंग का काम करके ये काफ़ी, जिसको हम कहेंगे कि डायमंड इंडस्ट्री में इसने अपना एक बहुत बड़ा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया है। ठीक है, और अगर हम इज़राइल के अदर एस्पेक्ट पे देखें तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। द कंट्री इज़ लैकिंग इन नेचुरल रिसोर्सेज। इसको जो अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स इम्पोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। नॉट ओनली दिस, इट हैज़ टू इम्पोर्ट ग्रेन्स ऑल्सो, यहाँ तक कि वीट तक को इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो ये सब क्यों है? बिकॉज द कंट्री हैज़ नो नेचुरल, मतलब नो तो नहीं कहा जाएगा, बहुत कम है नेचुरल रिसोर्सेज इसके पास। तो ऐसे कंडीशन में भी ये इतना आगे बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी बात है ना। कमी है, बट उन कमियों को इसने अपने डेवलपमेंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनने दिया। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी सूटेबल कंडीशन नहीं है। अगर इज़राइल को हम देखें तो इज़राइल जो है वो ड्राई रीजन में आता है, पानी की बहुत कमी है इज़राइल में, वाटर क्राइसिस वहाँ पर है, बट वहाँ पर पानी की कमी होते हुए भी मैनेजमेंट इतना बढ़िया है। वाटर मैनेजमेंट इज़ सच अ गुड क्वालिटी कि वाटर की कमी होते हुए भी उस कमी को उस पर कहा जाए कि उसको इन्होंने हरा दिया है। हमारी कंट्री को अगर हम देखें तो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वाटर है, वी आर नॉट अ ड्राई कंट्री, वी आर नॉट अ ड्राई रीजन। हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं है वाटर का, वहाँ पर वाटर की कमी है, स्कैरसिटी है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट इतने अच्छे तरीके से किया गया है जिसके कारण कि वहाँ पर वाटर जो है उसकी कमी होते हुए भी कमी का कोई असर नहीं है। उसको रिसाइकल, वाटर रिसाइकलिंग मैनेजमेंट किया गया है, जिससे कि वाटर की कमी को दूर किया गया है। और ड्रिप इरिगेशन, जिसका नाम हम सब आजकल जानते हैं, जहाँ कहीं भी हम वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं वहाँ ड्रिप इरिगेशन की बात होती है। तो दिस ड्रिप इरिगेशन वाज स्टार्टेड इन इज़राइल ओनली, इज़राइल से ही इसकी स्टार्टिंग हुई। तो यहाँ पर अगर एग्रीकल्चरल हिसाब से देखें तो कंट्री की कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि ड्राई रीजन है और इस कारण से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ये थोड़ा पीछे रह जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद इसने अपने वाटर रिसाइकल जो वाटर मैनेजमेंट जो है उसकी वजह से इसने काफ़ी अचीवमेंट डेवलप किया है, काफ़ी कुछ इसने अचीव किया है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देंगे वाटर मैनेजमेंट। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं मिलिट्री के हिसाब से। तो यहाँ पर एक यूनिक फीचर है यहाँ के मिलिट्री लाइफ की, और वो है कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर ऑल। सारे लोगों के लिए, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इज़राइल मस्ट हैव टू टेक दिस मिलिट्री ट्रेनिंग, कंपल्सरी है, आपको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी ही है। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो कि कंट्री के लिए और उसके सिटीजन्स के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इज़राइल में देखेंगे तो वहाँ पर पीपल मूव विथ आर्म्स, वो आर्म्स लेके घूमते हैं,
क्योंकि वहाँ पे आर्म्स के लिए हमारी तरह लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। हमारी कंट्री में आर्म्स रखने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, वहाँ पर लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ें हम इज़राइल के बारे में जानते हैं। आज हम यहीं पर इसको रोकेंगे और कल फिर से हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।